Hello students, today I am going to explain you a very important topic of writing skills, that is note making, which is very essential for learning the contents students. So we will start from notes making. Let's see how we can make notes in a very easy way. So before starting notes making, first I will have to tell you that what is the note making. Notes are short written record of facts to add the memory. Notes are useful taken to record a speech or dictation while listening to it or after reading a book, magazine, or article. They are referred back whenever needed and may be reproduced in the desired way. So students notes क्या हैं? नोट्स बहुत ही शॉर्ट रिटर्न रिकॉर्ड है फैक्ट्स का, जिसको कि हम अपनी मेमोरी में रख सकते हैं। किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए हमें जिस रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है तो दैट इज़ नोट्स। एंड ये बहुत ही यूजुअली हम इसको स्पीच वगैरह को याद रखने के लिए, रिकॉर्ड डिक्टेशन को याद रखने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, या फिर हमने कोई बुक पढ़ी है, मैगजीन पढ़ी है, आर्टिकल पढ़ा है, उसके अंदर हमने कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट देखा है जो हमारे माइंड में रहना चाहिए. So for that purpose we use notes making. The necessity of notes making we will see here. Knowledge is vast and unlimited, but our memory is limited. We cannot remember all the information all the time. Hence, note making is necessary. With the help of notes, we can recall the entire information read, heard months ago even. Note making is quite useful to students preparing so many subjects. At the time of examinations, it is not possible to go through voluminous books. At such critical times, notes are quite handy. Hence, notes making fulfill three useful functions. Which are those? It keeps a lot of information at our disposal for ready reference. यानी इनसे क्या होता है, थ्री यूजफुल फंक्शन कौन से हैं नोट्स मेकिंग के, कि हम उसमें एक ही टाइम में बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन को अपने पास रख सकते हैं. इट हेल्प्स अस रिकंस्ट्रक्ट व्हाट वाज सेड और रिटन एंड दस एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रिमेंबरिंग और रिकॉल. अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नोट्स मेकिंग किस तरह से हमें हेल्प करता है, वो हमारे माइंड में उन व्यूज़ को क्लियर रखता है जो चीज़ हमने पढ़ी है या लिखी है, और हमारे माइंड में उस चीज़ को किस तरह से हमें सेट करके रखना है, उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है नोट्स मेकिंग. It comes in handy in delivering a speech, participation in a debate, discussion, writing an essay, revising lessons before an examination. Characteristics of good notes. Notes should be short and compact. So good notes must be short and compact. Complete information also should be there. They should be logical. They must present it in a very logical way. And notes should be understandable. How to make notes. Now important thing is related to notes is how to make notes. What we have to do while we are going to make notes. So first we have to read the passage carefully. So not complete passage you have to read here carefully, but you will have to divide the passage, whatever the passage will be given to you in a lengthy form, you will have to divide that passage in 1, 2, 3, 4 paragraph. And then first you will have to read the paragraph. Second point, give a heading to your work. The heading will be based on the following consideration. So what you will have to keep in mind while you are going to suggest the heading of the particular content? The main idea of the passage, that you will have to keep in mind. And frame a heading based on the main idea. Write it in the middle of the page. Means in the center of the page you will have to write the heading. So these are the points, 3 points that you will have to keep in mind while you are going to suggesting the heading of the particular content. The third point, give subheadings. So you will have to select the subheadings from the particular paragraphs. How you will select the subheadings in a particular paragraph? How has the main idea been represented and developed? You will have to see that. Means paragraph wise you will have to read the complete passage. You will have to divide that passage in paragraphs. So first paragraph, second paragraph, likewise third or fourth paragraph you will divide that. And then
From first paragraph, suppose we are going to make out the notes from first paragraph. So what we have to see there? We have to see how has the main idea been represented and developed. Are there two or three subordinate associated ideas? Frame subheadings based on these. So whatever the content is given over there in the paragraph, you will have to select some important things from there. From that particular paragraph, take out some important points and then write them in a way of heading. So these are called subheading, but you will have to write those points in a heading way. Fourth point, are to be noted. Are there further details or points or the subtitles that you wish to keep in these notes? These are called points. Points may have sub points. So likewise I was telling you, यहाँ पर सब headings हैं. सब headings के अंदर जो निकलती है headings उनको हम बोलते हैं points या सब points. Okay, तो वो इतना compulsory part नहीं है. आप चाहें तो उसको reduce भी कर सकते हैं. अगर लिखते हैं कुछ सब सेक्शन में निकलता है कुछ तो यू कैन राइट, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. सब हेडिंग शुड बी एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम द मार्जिन. ऑल द सब हेडिंग्स, जो भी सब हेडिंग्स हम निकालेंगे वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस में होने चाहिए मार्जिन से, एक जैसा डिस्टेंस होना चाहिए उनका. एंड इन 6 पॉइंट इज इंडेंटिंग. पॉइंट शुड ऑल्सो बी एट द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मार्जिन. 7 पॉइंट, डू नॉट राइट कंप्लीट सेंटेंसेस. An abbreviation should be used. Abbreviation is what? Just to write a word in a short form. Just like information, we will write INFO. Now we will read about the abbreviation and symbols in detail. What are abbreviations and what are symbols? Abbreviations are used for precision and economy of words. Hence, quite helpful in note making. नोट मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं एब्रीविएशन. At least 4 recognizable abbreviations are to be used in note making in your board examinations. Students, if you are going to appear in a board examinations, so there 4 abbreviation at least of 4 words you will have to use. यानी 4 वर्ड्स आपके ऐसे होने चाहिए जिनको कि आप एब्रीविएट करके कम से कम वहां पर नोट्स मेकिंग में मेंशन करो. एंड दीज आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ नोट्स मेकिंग. स्टूडेंट्स ऑफन मेक यूज ऑफ एब्रीविएशन एंड सिंबल्स इन डूइंग देयर रिटन वर्क. और सम टाइम क्या होता है, ये एक एसेंशियल कंपोनेंट माना गया है नोट्स मेकिंग का, और स्टूडेंट्स जो है इसको अपनी जो रिटन वर्क करते हैं वो डेली का, उसमें भी कई बार इन एब्रीविएशन और सिंबल्स का यूज भी करते हैं. तो विच आर द सिंबल्स विच वी कैन यूज इन नोट्स मेकिंग? वी हैव डिवाइडेड द सिंबल्स इन 2 पार्ट, A and V. A is universal symbol and in B part mathematical symbols. So in universal symbol we can see like that, just like we have written and will be written in short form just like opposite, जैसे S लिखते हैं opposite side में वैसे हमने लिखा. And 4 it is the indication of and. 1 point above and the downside 2 point, that is the symbol of therefore. 2 point above and 1 point downside, that is for because. So likewise we will have to use the symbol. Study the following examples. Just see. Acronym. Acronym is what? That is capital initial letter. Means you will have to abbreviate the particular form in writing a capital letter, just like CBSE, that is written for Central Board of Secondary Education. CO for commanding officer. So likewise we can read here so many forms I have given here. Now students, I want to tell you what is numbering and indenting, and that is a very important part also for notes making. While you are going to write notes, that time you will have to fully prepared that what is indentation. You should come to know about it. So indentation means leaving space at the beginning of a line of print or writing. So likewise you can see, ये जो आपका जहाँ पर
फर्स्ट पॉइंट है और जहाँ ए लिखा हुआ है, इसके बीच का जो ये डिफरेंस है, सो दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। यानी पहले पॉइंट के बाद जब हम नीचे सब पॉइंट डाल रहे हैं, तो सब पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। और ये इंडेंटेशन बहुत जरूरी है बच्चों, इसको प्रॉपरली हमें हर जगह फॉलो करना है। सपोज हम सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, तो यही इंडेंटेशन का यूज हमें बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से करना पड़ेगा। अब आपका है, फर्स्ट राइट द टाइटल एंड देन राइट डाउन द नोट्स इन ए लॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द मेन हेडिंग टू द सब हेडिंग एंड द नंबरिंग शुड बी स्पेस्ड इन लिटिल टू द राइट। तो अब आप देखेंगे कि इंडेंटिंग फॉर्म में हमने कैसे लिखा है, जो मैं भी आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। इसको लिखने का भी इंडेंटिव फॉर्म में दो तरह के फॉर्मेट हैं आपके सामने, इंडेंटेड फॉर्मेट फर्स्ट, इंडेंटेड फॉर्मेट सेकंड। तो जो फर्स्ट वन फॉर्मेट है यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया हमने, फिर उसमें सब हेडिंग के लिए हमने पॉइंट दिए हैं ए बी सी, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते थे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट। अब इंडेंटेड फॉर्म जो डेसिमल फॉर्मेट है, डेसिमल फॉर्मेट में हमने दिया है जो फर्स्ट है, फर्स्ट दे दिया हमने यहाँ पर हेडिंग, और फर्स्ट का 1 पॉइंट ये सब हेडिंग हो गया, फर्स्ट का सेकंड पॉइंट, इसके 2 हेडिंग हो गई। यानी पहले वाले में हमने 2 सब हेडिंग निकाल दी। इन शॉर्ट फॉर्म में आपको कहूँ तो नोट्स मेकिंग में आपको क्या करना होता है, नोट्स मेकिंग में एक आपको हेडिंग निकालनी होती है, और उस हेडिंग के अंदर आपको 2 या 3 सब हेडिंग निकालनी होती हैं, जिनको कि लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ ऐसे इंडेंटेड फॉर्मेट में होता है। यानी हेडिंग को हमने लिखना है तो हमने 1 पॉइंट पर हेडिंग डाल दिया, और सब हेडिंग जो लिखनी है 1.1 1.2 करके हमने डाल दी। ऐसे ही हमने सेकंड है हेडिंग सेकंड निकाली, उसके बाद 2.1 और 2.2 करके हमने उसको लिख दिया। ठीक है, तो लाइकवाइज वी हैव टू डू दिस। अब अगर इसके अंदर भी सब पॉइंट भी हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर इस तरह से यूज करेंगे, जैसे ये 2 का हमने सब पॉइंट निकाला है, इसके अंदर भी हमने सब सेक्शन निकाला है, तो 2.2.1, 2.2 का 1, फिर 2.2 का 2, इसके अंदर भी यदि पॉइंट है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन ये कोई बहुत मैंडेटरी नहीं है इसको निकालना, आप चाहें तो ओनली हेडिंग और सब हेडिंग तक ही निकाल सकते हैं। यानी एक हेडिंग और उसके बाद 2 या 3 सब हेडिंग। राइट अ समरी। अब समरी को कैसे लिखना है आपको, समरी जो होती है आपकी, जो आपने हेडिंग और सब हेडिंग्स निकाली हैं, उसके ही बेस पर आपको आपकी समरी निकालनी होती है, जो भी आपने उसमें हेडिंग्स पढ़ी हैं, सब हेडिंग्स पढ़ी हैं। जैसे समरी इज एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द पैसेज। समरी क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट है पैसेज का। एक्सपेंड योर हेडिंग एंड सब हेडिंग एंड राइट डाउन द आइडियाज डेवलप्ड इन द पैसेज इन द स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट। यानी आपके फॉर्मेट में 80 वर्ड लिमिट का है आपको इसको लिखना, समरी को, और स्पेशली बोर्ड क्लासेस में आई थिंक वो 1/4 पार्ट मांगते हैं इसका, तो आप अकॉर्डिंगली जैसे भी आपके बोर्ड में डिमांड हो उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी लेंथ रख सकते हैं राइटिंग की। अब वी विल रीड हियर द पैराग्राफ। तो पैसेजेस वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड, आपकी कन्वीनियंसी के लिए आपको इस पैसेज को अच्छे से समझाने के लिए इसको पैराग्राफ में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो मैंने इसको पैराग्राफ में डिवाइड किया, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना होता है, पैराग्राफ 1 जो हमने लिखा हुआ है, बनाया है, तो उसको हम पहले अच्छे से उसको रीड करेंगे, उसके बाद ही हम पैराग्राफ 2 रीड करेंगे, सबको एक साथ रीड नहीं करेंगे, और उसके साथ उसके नोट्स बनाते जाएंगे। तो हमने पैराग्राफ 1 को हम रीड करेंगे यहाँ पर। जहांगीर वॉज बॉर्न ऑन 30 अगस्त 1569 टू अकबर द मुगल एम्परर एंड हिज हिंदू वाइफ जोधाबाई। He was crowned on 24 October 1605. In the 22 years he was emperor till his death on 28 October 1627. He had many battles to fight and many rebellions to suppress. But he always found time for his greatest hobby, the study of animals and plants. तो बच्चों आपको यहाँ बताया जा रहा है जहांगीर का जो जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को, अकबर जो कि एक मुगल एम्परर थे और उनकी वाइफ थी जोधाबाई, उनके यहाँ हुआ था, और इनका जो सिंहासन पर इनको बैठाया गया था वो 24 अक्टूबर 1605 को इनको सिंहासन पर बैठाया गया था। इनकी डेथ 28 अक्टूबर 1627 को हुई थी। एंड इनको बहुत ज़्यादा शौक था
किसका? द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड स्टडी करने का इनको बहुत शौक था। और ही वॉज एन एविड बर्ड वॉचर और एन ऑर्थोलॉजिस्ट। बर्ड वॉचर या ऑर्थोलॉजिस्ट यानी जो एनिमल्स और एनिमल्स वगैरह की जो स्टडी करने में बिलीव रखते हैं या एनिमल्स की स्टडी करते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। एज ही वुड बी कॉल्ड नाउ अ कीन नेचुरलिस्ट, और इसीलिए उनको प्रकृति का बहुत ज़्यादा निकट माना जाता है। और केयर एंड एक्यूरेसी with which Jahangir described various characteristics of animals and birds, the geographical distribution and behavior would have done credit to a full-time naturalist. His observation are recorded in his memoirs, The तुजुके जहांगीरी। तो ये बहुत ज़्यादा प्रकृति को कीनली ऑब्जर्व करने वाले रहे हैं, स्पेशली एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में, और उनके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उनके बिहेवियर को देखने वाले रहे हैं। और इनके इस वर्क का जो डिस्क्रिप्शन है, जो इन्होंने किया ऑब्जर्वेशन वर्क का डिस्क्रिप्शन तुजुके जहांगीरी में। Jahangir had a small zoo and he would spend hours, sometimes days and night together on his observation. For the first time in the history of ornithology, he noted how Sarus cranes met, brought over their eggs in turn, and how chicks are hatched and taken care of. He also observed one human quality in this bird: the parents love not only their eggs and chicks but also each other. So यहाँ पर जहांगीर बता रहे हैं उनके पास में एक स्मॉल सा जू था और उसमें वो बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व करते थे। और उनके कीन ऑब्जर्वेशन से उनको ये पता चला कि वहाँ पर जो एनिमल्स थे वो भी इस तरह से रहते थे जैसे कि ह्यूमनली बिहेवियर करते हैं। उन्होंने ये नोटिस किया कि जो ह्यूमन क्वालिटी इंसान के अंदर जो क्वालिटीज़ होती है वही जानवर के अंदर भी होती है। वो भी अपने बच्चों को वैसे ही प्यार करते हैं, और ना सिर्फ बच्चों को वैसे प्यार करते हैं बल्कि उनका भी अफेक्शन एक दूसरे के प्रति वैसे ही रहता है जैसे कि बच्चों के पेरेंट्स का एक दूसरे के प्रति रहता है। तो यही सब कुछ है इसमें। अब हम आगे देखते हैं, इसके नोट्स बनाएंगे। अब आपका देखिए, पहले तो मैंने इसको कंप्लीट पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो हमें इसका जो टाइटल निकालना है, जब हम इसको कंप्लीट पैसेज को पढ़ लेंगे तभी हमें टाइटल निकालना है। अभी हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट से। तो मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट क्या निकाला है? एन ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड एनिमल एंथुजियास्ट। ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद उसका जो मुझे पॉइंट निकालने थे उसमें नंबर 1 डाला मैंने, Described characteristics, distribution and behavior of animals and birds. Characteristics को मैंने यहाँ पर एब्रीविएट किया है, CH एंड कोमा लगाया, ऊपर स्टिक्स लिखा। सेकेंड पॉइंट है, had a private zoo, observed सारस क्रेन्स behavior as families. ठीक है, तो मैंने इसके यहाँ पर ये पॉइंट सब पॉइंट्स निकाल दिए, यानी पहले मेन हेडिंग निकाल दी, फिर सब पॉइंट्स निकाल दिए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, the emperor had several famous painters in his court. When he came across a rare animal, bird, or plant, he would instruct an artist to draw it. The painter who excelled in his art was Ustad Mansoor. For modern ornithologists, Jahangir's collection of painting provides a striking, accurate description of the natural history of the day. Unfortunately, most of these paintings are no longer to be found in India. With the disintegration of the Mughal Empire, foreign adventurers looted this treasure. Most of the paintings were thus lost. तो यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि एम्परर जो थे उन्होंने बहुत सारे पॉपुलर पेंटर्स रखे हुए थे अपने कोर्ट के अंदर, और जब भी कभी वो किसी भी रेयर काइंड ऑफ एनिमल्स या बर्ड से कम अक्रॉस होते थे तो वो उसकी पेंटिंग बनवा लिया करते थे, और उनके पेंटर थे उस्ताद मंसूर। और उन्होंने जो मॉडर्न ऑर्थोलॉजिस्ट थे उनके ऑब्जर्वेशन के लिए एक तरह से उन्होंने जहांगीर का जो कलेक्शन था पेंटिंग का, वो उन लोगों को जो कि मॉडर्न ऑर्थोलॉजिस्ट थे उनको एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है नेचुरल हिस्ट्री के बारे में उस टाइम की। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जो पेंटिंग्स हैं वो अब इंडिया में नहीं पाई जाती, क्योंकि बहुत सारी जो पेंटिंग्स थी वो अब लूट ली गई थी ऑलरेडी। जो फॉरेन एम्पायर्स यहाँ पर आई थी तो वो उस पेंटिंग्स के जो खजाना था उसको वो लूट कर ले गई, तो इस वजह से अब वो पेंटिंग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम देखते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन
इसका पॉइंट बनाया हमने, और इसमें जो सब पॉइंट्स निकाले हैं, रेयर एनिमल्स, बर्ड, प्लांट्स वर पेंटेड बाय स्किल्ड आर्टिस्ट उस्ताद मंसूर, आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट। सेकंड पॉइंट हमने निकाला, रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन इन ऑटोबायोग्राफी तुजू के जहांगीरी। थर्ड पॉइंट हमने निकाला, मुगल पेंटिंग लूटेड बाय फॉरेन एडवेंचर्स। तो हमने इसके ये एक हेडिंग निकाल दी, बाकी ये सब हेडिंग्स निकाल दी 3। ठीक है, अब इसी तरह से हम नेक्स्ट अपनी हेडिंग बनाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से। वी विल रीड नाउ। In 1958, a Russian researcher, Ivanik, created a sensation when he discovered a rare portrait of Dodo, a large non-flying pigeon-like bird which became extinct about 3 centuries ago. This portrait was found in a collection of painting at the Institute of Orientalist of Soviet Academy of Science. There was no way of identifying the painter, but the style without doubt was that of Ustad Mansoor. Now there is the evidence to show that it was the portrait of Mauritian dodo that was presented to Emperor Jahangir around 1624. Over 3 centuries after their death, Jahangir and his dodo made a dramatic reappearance in the world of ornithology. तो बताया जा रहा है बच्चों कि 1958 में रशियन रिसर्चर जो थे ए आयोनिक, उन्होंने एक सेंसेशन क्रिएट कर दिया था उनकी डिस्कवरी से, जो कि उन्होंने की थी एक रेयर पोर्ट्रेट की, जो कि डोडो नाम के एक बर्ड की थी, जो कि एक लार्ज नॉन फ्लाइंग पीजन बर्ड थी, और जिसके बारे में ये आइडिया लगाया जा रहा था कि वो पेंटिंग जो है उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाई गई है। और उसको आइडिया भी सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा था क्योंकि उसका बनाने का जो तरीका था वो बिल्कुल वैसे ही उन्हीं के स्टाइल से मैच करता हुआ था जिस तरह से उस्ताद मंसूर वो पेंटिंग बनाए करते थे। और ये जो पोर्ट्रेट थी वो मॉरिशियन डोडो की पेंटिंग थी, that was presented to the Emperor Jahangir around 1624. So likewise, we will see the next paragraph also of that. Jahangir also loved garden, but dissertations in botany and horticulture were mostly confined to how a lotus traps hornets or how saffron sprouts from soil. However, he was responsible for the cultivation of high altitude trees such as the cypress, juniper, pine, and Javanese sandal in plains. Here, Jahangir had many other scientific interests. He once conducted an experiment to show that the air of Mohammadabad in Gujarat was healthier than that of Ahmedabad. He was fascinated by the movement of the stars and the planets and used to regularly record the occurrence of solar and lunar eclipse. When a comet made its appearance, he recorded the growth and decay of its tail. Third point I have taken out from the paragraph 6. You will see. Other scientific interest मैंने यहाँ पर निकाला है. Wrote dissertation on botany or horticulture. Second point, cultivation of high altitude trees in plains. And third point, movement of stars and planets, eclipse and comets. तो I have written it like this. मैंने कॉमन पॉइंट्स निकाल लिया यहाँ पर सबका, जो मुझे उसमें ठीक लगा. तो इस तरह से आप अपने भी नोट्स बना सकते हैं. एंड नाउ वी विल हैव टू कम टू द पॉइंट टू की टू एब्रीविएशंस. एब्रीविएशंस के लिए कौन कौन सी की हमें यूज़ करनी है लाइक दिस. जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, शॉर्ट फॉर्म में हमने कैसे लिखा है इसको, यू कैन सी हियर. एडवेंचर्स वी हैव रिटन हियर इन शॉर्ट फॉर्म. साइंटिफिक SC उपा कॉमा लगाया FIC, तो शॉर्ट फॉर्म में कर दिया. लाइकवाइज वी हैव एलोबरेटेड हियर. नाउ राइट द समरी ऑफ द पैसेज इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स यूजिंग द नोट्स मेड. अब जो हमने नोट्स बनाए थे उनके बेस पर हम यहाँ पर समरी निकालेंगे. सेकंड पार्ट अपना समरी का है, तो वी विल स्टार्ट टू राइट द समरी. लाइकवाइज एम्परर जहांगीर वाज ए कीन नेचुरलिस्ट, जो कि हमारा पहला पॉइंट था. ही लव टू ऑब्जर्व बर्ड्स एंड एनिमल्स, हैड द रेयर वन पेंटेड by skilled artists like Ustad Mansoor. A portrait of an extinct Mauritian dodo was discovered by A. Ivanuk, a Russian researcher. Jahangir had a small zoo where he observed birds and animals, particularly Sarus crane. He noted his observation on the behavior and geographical distribution in his biography Tuju Ke Jahangiri. Besides, he had interest in horticulture, stars and planets, eclipse, and even in the purity of air in various sites. So here
you are not required to write in points. Completely in paragraph from you will have to write the summary. Okay.